for your remembering and all, I am given a just example. We are discussing there are four instructions like move a comma 32. Number two, move a comma has 32. Number three, move a comma r0, and number four, move a comma at the rate of r0. Anyone can recall what are the function of these four? Anyone can recall these functions of four? In first instruction, 32 act as a data. Act as a Data. no, In Ashish. first instruction. Sir, address. Address 32 act as a address, and the Yes, sir. content of that particular address will be copied into the accumulator. The content of that particular address will be copied into the accumulator. That is the function of the first instructions. Yes, It's sir. clear to all? Yes, sir. Next, second instructions. 32 act as a data itself. Then 32 will be automatically stored into the accumulator after the Accumulator. Accumulators. instructions. Before the instructions may be any data, but after the instruction, accumulator should be 32H. What are the third one? Same as 8085. क्या है उसको बोलो? सर R0 जो कंटेंट होगा वो एक्यूमुलेटर में आ जाएगा. R0 में जो कंटेंट होगा वो accumulator में आ जाएगा. Very good. The content of R0 will be coming into the accumulator. Okay. Yes, Next, sir. number 4, move a comma at the rate of R0. क्या functions होगा इसका? Sir, The content- R0. बोलो. सर R0 का कंटेंट में जो एड्रेस रहेगा वो एक्यूमुलेटर में स्टोर हो जाएगा. R0 का कंटेंट एक्ट एज एड्रेस. यस सर. हाँ, वो एड्रेस का जो कंटेंट होगा वो accumulator में आ जाएगा. ओके. और क्या क्या बोले थे? ये इंस्ट्रक्शन मैंने at the rate of support only R0 and R1. At the rate of only support these two instruction R0 and R1. ये भी बोले थे. याद है कि नहीं? Is it clear to all? It's clear? Yes sir. और 3 नंबर में क्या बोले थे? बोलो. Move R3, R4. It's not a valid instruction. Move R3, R4 is not a valid instruction. These are wrong instructions. ये करने के लिए हम लोग R4 का कंटेंट पहले R3 में एक्यूमुलेटर में, देन एक्यूमुलेटर कंटेंट R3 में ले सकते हैं और डायरेक्ट मेमोरी लोकेशन देके भी कर सकते हैं. इज इट क्लियर? Yes, sir. वेरी गुड. तो चलो आज हम लोग देखते हैं क्या क्या इंस्ट्रक्शंस हम लोगों का है. You can see my slide. Yes, sir. Sir. This is nothing but a instruction set. Okay. So now I will be coming into that. Instruction, there are 4 type of instructions: moving, data instruction, logical operation, arithmetical operation, and some jump and call instructions.
Next, coming into the moving instructions, there are several kind of moving instructions. Okay, those are included. So I'm just coming one by one. First, these instructions. So anyone can explain what are the functions? What are the function of hash n? Means move a comma hash 32, like that. N means data. Like move a comma hash a0h. Is it clear? Is it clear to all? Yes, sir. Next, remember one thing, just see, if any number like 32, 54, no need of, connected a zero before that. But if your number is starting from A to F, A, B, C, D, E, F, then a zero should be connected before that. Then a zero should be connected before that. What are the purpose of this zero? It is distinguished between, distinguish between the address and data. Sorry, number and character. Number and character, it will be distinguished. If it is a character, means any number starting with A, B, C, D, E, F, then connected zero before that. So it means A is not a character, A is a number. In hexadecimal, it is a number. Is it clear to all of you? Yes, sir. Just see my example. I am given example, move a comma, sorry, it is a not at the rate of, it's a hash. Move a comma hash 32. Just see, move a comma hash 32. In this memory, data, I am not connecting a zero. But if the number is like that, number is like that, move a comma a hash BC, BD. Number is a BDH. So just see, this number is starting with a B. So distinguish between number and connector. I am given over here a 0 BD. So it means this B is a number B. So number is like that, to move a comma a hash 9E, 9EH. But we are not connecting a 0 before that because it's a number. If it is a character, A, B, C, D, E, F, then I am connecting a 0 before that. Is it clear to all of you? Is it Sir, clear due to all to of you? this reason, I faced lot of problem. Okay. Sir, while running the program in simulator. Some error will be occurred. Yes, sir. Every time error will occur, a pointer number this error found, and I'm not understanding why. आज समझ में Invalid आ गया सर. instructions भी बोल सकते हैं और operand is not correct, ऐसा भी बोल सकते हैं. Yes, sir. Operand is not correct. Yes, sir. तो ए जो है, ये 0 पहले देना पड़ेगा. कोई नंबर से स्टार्ट होगा, कोई नंबर से स्टार्ट होगा तो 0 नहीं देना है. नंबर कैरेक्टर से स्टार्ट होगा तो 0 देना है. इज इट क्लियर? तो और एक चीज, हम कितना बाइट का इंस्ट्रक्शंस है वो तुम लोग पता है, तुम लोगों को कितना बाइट का इंस्ट्रक्शंस होगा. 8 बिट का नंबर है तो 2 बाइट का इंस्ट्रक्शंस. रिमेंबर one thing, in 8085, several T-state is required. Some machine cycle required 4, some machine cycle required 5, some machine cycle required 3, some machine cycle required 6, something like that. So different machine cycle have a different T-state. But in 8051, all the machine cycle equal T-state, all the machine cycle 12 T-state. All the machine cycle have a equal T-state, that is a 12 T-state. So just see, the cycle is required 1 machine cycle and 12 T-state. 1 cycle and 12 T-state. 2 cycles to 24 T-state. Is it clear? Is it clear to all? Yes, sir. Next, just see,
move RR comma has n. What are the functions of move RR comma has n? RR means R0 to R7 any register. R0 to R7 any register, that is called RR. So you know move R0 comma has 0A0H. What are the functions 0A0H? Means A0 will be stored into the R0. R0 के जगह में R1 हो सकता है, R2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. DPTR has NN. इधर दिया था N, इधर दिया था NN. NN मतलब है 16 bit number. N मतलब 8 bit number. NN मतलब 16 bit number. Just see DPTR is a 16 bit register. So 1, 2, 3, 4 is stored into the DPTR. DPTR के अंदर 2 8 bit का रजिस्टर होता है. उसका नाम क्या बोला था मैंने इसे बार जब पढ़ाया था बोले थे, क्या नाम है याद है? बोलो बोलो. Sir, बोलो. DPL. DPH and DPL. DPH and DPL together is called DPTR. Is it clear? Is it clear to all? It's clear to all of you? किसी का कोई क्वेरीज है तो बोलो. It's clear, everyone. Yes, sir. Okay. So can I am proceeding. So these 3 instruction is clear to all. Remember you just noted down the instructions. What are the instructions? Move A comma has n, move RR comma has n, move DPTR comma has n. Otherwise you are unable to understand how many instructions we are already explained, and you know what are the instruction is available. So write down 1 2 3 करके 1 में move A comma has n, 2 में move RR comma has n, 3 में move DPTR comma has n. इसमें देख के तुमको कोई फंक्शन नहीं पता चल रहा है उसके बाद फिर हमको पूछना. I will be explain. Is clear to all? RR वाला एक बार रिपीट कर दीजिए ना. RR में RR मतलब R0 to R7 कोई भी रजिस्टर हो सकता है. जैसे एक्यूमुलेटर के अंदर डेटा घुसा रहा है ऐसा RR के अंदर भी डेटा घुसा सकते हो. जैसे R0 हैश A0H मतलब आफ्टर द इंस्ट्रक्शन R0 के अंदर A0H स्टोर हो जाएगा. आफ्टर द इंस्ट्रक्शन R0 के अंदर A0 स्टोर होगा. जैसे दिस इंस्ट्रक्शंस में एक्यूमुलेटर में आफ्टर द इंस्ट्रक्शन A0 स्टोर होगा. जैसे मैंने जो हमारा कॉपी में दिखाया था एक्यूमुलेटर में 32H स्टोर हो रहा था. अभी इधर में एक्यूमुलेटर में A0 स्टोर होगा. इज इट क्लियर? Yes, sir. तो इसके इंस्ट्रक्शन लिख लेना तो सुविधा होगा तुम लोगों को. नेक्स्ट मूव A कॉमा RR, मूव RR कॉमा A. A कॉमा RR और RR कॉमा A. इसमें क्या लिखा है? इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन. It is not possible to move the data between R0 to R7 using register addressing mode. मतलब a move R3 comma R4 is not possible. It's not a valid instruction. Move A comma R3 or move RR comma A is possible, but move RR comma RR is not possible. Move RR comma RR is not possible. जैसे हम मैंने बोला था move R3 comma R4 is not possible क्योंकि उतना instructions नहीं है इसके पास. Is it clear? Yes, sir. Clear to all? Yes, sir. Right. Can I proceed? So I'm Yes, proceeding. sir. Move A comma ADD. ADD means address. Move A comma address. Move address comma A. मतलब example number 1. मैंने 4 example दिया था. वो example number 1. Move A comma 32. Move 32 comma A. Like move RR comma address. Move address comma RR. Move address 1 comma address 2. मतलब direct address से address भी चला जाता है. And move A comma address comma has in means कोई भी एड्रेस में कोई भी डेटा तुम बाहर से भी स्टोर कर सकते हो. इट्स क्लियर? इट्स क्लियर टू ऑल?
सर एड्रेस टू एड्रेस कैसे होगा सर? जैसे मान के चलो, एज फॉर एग्जाम्पल मैंने बोले भी थे, तुम लोग को याद है ना कि पता नहीं, मूव R3, R4 करना चाहता हूं, मगर ये इंस्ट्रक्शंस है, नो सर, दिस ये इज नॉट नहीं है। पॉसिबल। तो इसको क्या कर सकते हैं हम? R3 का एड्रेस क्या है? हम कोई बैंक सिलेक्शन किया है? नहीं किया है। नहीं करने से कौन सा बैंक बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट रहता है? बैंक 0। बैंक 0। वेरी गुड। बैंक 0 बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट होता है। बैंक 0 का R3 का लोकेशन क्या है? लोकेशन याद है ना? सर 03H 03H। वेरी गुड। R4 का कितना एड्रेस है सर? 04H 04। 04H। तो मैंने हम लोग ऐसा इंस्ट्रक्शन लिख सकते हैं, मूव 03H, 04H। इसमें क्या होगा? R4 का कंटेंट R3 में चला जाएगा। मतलब 04H में मान के चलो AB है, 03H में मान के चलो CD है। ये है बिफोर द इंस्ट्रक्शंस। आफ्टर द इंस्ट्रक्शंस 04H will be AB and 03H will be 04 से 03 में आएगा ABH। इज इट क्लियर? ये डेटा एक्चुअली इधर कॉपी हो जा रहा है, इधर का डेटा इधर में कॉपी हो जा रहा है। क्लियर? यस सर सर। टी स्टेट वैसे ही सिमिलर जैसे पहले कैलकुलेट करते थे वैसे ही निकलेगा? हाँ, वो समझ में नहीं आया। सर जैसे टी स्टेट और ये साइकिल यहाँ पर जो लिखा हुआ है लास्ट कॉलम में सर, वो मशीन हाँ साइकिल हाँ है, कितना हाँ, नंबर ऑफ मशीन? ऐसा ही है, मगर हम लोग उसमें घुसेंगे नहीं क्योंकि वो कभी जरूरत नहीं पड़ता है। मैं 4-5 इंस्ट्रक्शंस को बोल दूंगा जिसको तुम लोग याद रखना, और ये कैलकुलेशन करने के लिए, डिले कैलकुलेशन करने के लिए, वो हम लास्ट में आएंगे। ठीक है, मगर याद रखना एक चीज, हर एक मशीन साइकिल में 12 टी स्टेट, इसमें कोई लेना देना नहीं है, कोई कम भी नहीं है, कोई ज्यादा भी नहीं है। ठीक है? ओके ओके सर। So ये सारा इंस्ट्रक्शन क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सारा इंस्ट्रक्शन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एनी क्वेरीज किसी का कोई? सर एग्जाम्पल में जो दे रखा है हाँ, उसमें वो लास्ट में ब्रैकेट में वो क्या मतलब पोर्ट बता रहा है, कहीं पोर्ट है कहीं रजिस्टर लोकेशन ऑफ है? इंटरनल रैम क्यों बोला है? लोकेशन ऑफ इंटरनल रैम, 0FH is R7 of बैंक 1। ये जो 0FH बोला है ना, 0FH किधर का है? अच्छा उसका लोकेशन बताए कि बैंक बैंक 1 का रजिस्टर वन 7 का में। R7 वही बोला है। यस ओके सर। 5C अप टू 0027F मैंने बोला था, 0027F इज ए इंटरनल रैम। इंटरनल रैम 0027F इंटरनल रैम। मैं इंटरनल रैम का स्ट्रक्चर भी दिखाया था, याद है कि नहीं है पता नहीं है। हाँ सर 8051 में ना? हाँ हाँ, यस सर हाँ। मैंने बोला था ना 0027F ये है इंटरनल रैम। तो इंटरनल रैम का जो इंटरनल रैम है उसी का तुम्हारा डेटा ये है, मतलब 0027F के अंदर है ना, इसीलिए 5C 7F ये सब लिखा है। इज इट क्लियर? यस सर। अभी बोलो इसको क्या फंक्शन क्या है? ये आरपी लिखा है, आरआर नहीं लिखा है। आरपी का मतलब सिर्फ R0 एंड R1 हो सकता है। देखो क्या लिखा है, इन दिस मोड ओनली R0 एंड R1 रजिस्टर इज यूज्ड। R0 एंड R1 हो सकता है, इसीलिए इसको RR नहीं लिखे हैं, RP लिखे हैं। RP मतलब ओनली R0 एंड R1। So at the rate of RP comma hash n, what are the functions of RP comma hash n? ये जो डेटा है ये RP में चला जाएगा। मतलब
ये जो डेटा है R0 के अंदर जो एड्रेस है उसी एड्रेस में चला जाएगा. इफ आई एम गिवन एग्जांपल लाइक मूव @ R0, #80h, क्या होगा? R0 में मान के चलो बिफोर द इंस्ट्रक्शंस R0 में 32 है. ओके, 32h में मान के चलो AB है. आफ्टर द इंस्ट्रक्शंस क्या होगा? R0 में 32 ही रह जाएगा, मगर 32h में 32H में 80 आ जाएगा. 80 आ जाएगा. इज इट क्लियर टू ऑल? इज इट क्लियर टू ऑल? देखो पहले R0 में 32 था, 32H में AB था. अभी आफ्टर द इंस्ट्रक्शन R0 में 32 ही रह गया, मगर 32H मेमोरी लोकेशन में 80 आ गया. मतलब जो डेटा तुम दे रहे थे वो डेटा इधर आ गया. इट्स क्लियर? यस क्या कोई सर. क्वेरीज है? सर ये मशीन साइकिल 1 और 2 कैसे हो रहा है समझ में नहीं आ रहा. कौन सा में? इसका भी कुछ हिसाब है, इसका भी कुछ हिसाब है. ठीक मैंने है. उसको समझाने से तुम लोगों पर बोझ बनेगा और कुछ नहीं, इसीलिए मैं तुम लोगों को डराना नहीं चाहता हूँ, इसलिए हम बोल नहीं रहा हूँ. सिर्फ याद रखना, एक मशीन साइकिल होगा तो 12 टी स्टेट होगा, 2 मशीन साइकिल होगा तो 24 टी स्टेट होगा. राइट? इधर में ऐसा ओके बात सर. नहीं है. टू मशीन साइकिल मतलब 2 ही जरूरत पड़ता है, किंतु 12 स्टेट है ना, ये दोनों 2 बाइट का भी काम एक साथ कर सकते हैं, इसीलिए ऐसा बात नहीं है. इधर टी स्टेट ज्यादा है, इसीलिए हम लोग तुमको इसको ज्यादा क्लास होने के बाद, मतलब सब अखाड़ा खत्म होने के बाद टाइम मिलेगा तो हम एक बार तुम लोग को बताएंगे, मगर इट्स नॉट रिक्वायर्ड फॉर योर सिलेबस, सो आई एम नॉट टेकिंग दिस वन. तो ये थोड़ा इतना ही बोझ ले पाओगे तो ठीक है. ठीक है. नेक्स्ट, move @RP, address. What are the functions move @RP, address? मीन्स अभी देखो ये डेटा डायरेक्ट दे रहा था, अभी ये एड्रेस से डेटा जाएगा, मगर इधर में हैश नहीं रहेगा. तो क्या होगा? 80H मेमोरी लोकेशन का जो कंटेंट है वो आ जाएगा. सिमिलरली @RP, A, एड्रेस @RP और A, @RP. ये तो हम इधर में ही समझाया. तो इसमें कोई डाउट्स है किसी का तो बोलो. बोलो, किसी का कोई डाउट्स है तो बोलो. किसी का कोई डाउट्स है? बोल सकते हो, क्वेरीज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. नो सर. तो ये सारा इंस्ट्रक्शन का फंक्शन पता चला? हाँ, सर आरपी में सिर्फ R0 और R1 रजिस्टर यूज होता है, और RR जहाँ पे था वहाँ पे क्या था? कोई R0 भी, to R7 कोई भी रजिस्टर. कोई. ओके सर. मैंने बोला भी है. ये छोड़ते क्लास चलते रहेगा. नहीं वो रद्द से कर दें कुछ. हाँ ये करके रखते हैं ना, तो बाहर में चल करते मोहल्ला में 4 लगा देते हैं, नीचे चल रहा है, फिर क्लास कट जाएगा, अटेंडेंस छूट जाएगा. आइए फिर हेलो, इट्स क्लियर? यस सर. अच्छा, ठीक है. मूव ए कमा क्लास छूट ना जाए. मूव ए कमा @R0. हाँ, इसी में देखो मैंने बोला भी था R0 और R1 ही पॉसिबल है @ दूसरा किसी को नहीं होगा. R0 और R1 सिर्फ @ सपोर्ट ही करता है R0 R1 को, और किसी को नहीं. इज इट क्लियर? क्लियर टू ऑल? यस सर. ओके. ये भी हो गया. नेक्स्ट दिस वन. So what are the function of this one? हाँ, बोलो.
move C move C a comma at the rate of a plus dptr, a plus dptr. So what will be the function? Function is nothing but a plus dptr generate a address, and the content of that particular address will be copied into the accumulator. Just see my copy. Say move C a comma at the rate of a plus dptr. What are the functions? Function is just like that. A, say before the instructions, A is 35, dptr is say 8000 H. Is it clear? So if I'm summing these two, so it will be 8035. So the content of 8035 say is it's AB. This AB will be copied into over here. So after the instructions, accumulator will be AB, dptr will be unchanged, and 8035 H will be AB. It's clear to all? It's clear to all? Any queries if you have, you can ask me. सर 8035 पे दोनों को ऐड करके हुआ ना, हाँ एक्यूमुलेटर और dptr का। हाँ 80 and 8035. ओके सर। सर यहाँ पे मूव सी क्यों लिखा हुआ है? सी का तो कुछ हाँ काम ही नहीं। हम आएंगे। सी का है ये कोड मेमोरी, यह कोड मेमोरी। जिस जस्ट ऊपर में देखो, जस्ट इज अ कोड मेमोरी। कोड में मतलब हम लोग का दो तरह का मेमोरी होता है, वन इज अ प्रोग्राम मेमोरी एंड अनदर इज अ डेटा मेमोरी। Am I right? One is a program memory, another Yes, is a sir. data memory. Program memory is nothing but a code memory. So these instruction is copy only the content of code memory, only the content of code memory, never the copy the content of data memory. So it's a move C. If next I will be coming move X. Next I will be coming move X. Move X is a function. Move X is the function. In that particular time, it will be data memory, but it will be from external memory. It will be from external memory. Remember, whenever we are using the code memory, then it's the move C. And if I'm using the data memory or something like that from the external, then it will be move X. It's clear to all? Sir, once more, sir. C is Sir, move X. Move X, I will be coming. Move C समझाता है. Move C stand for code memory. Code memory means program memory. प्रोग्राम मेमोरी का डेटा इधर में कॉपी होगा। ये जो एड्रेस है ये है प्रोग्राम मेमोरी का डेटा, ये प्रोग्राम मेमोरी का मेमोरी लोकेशंस। ऐसा 8035 और एक है जो है डेटा मेमोरी का। मैंने पहला दिन बोला था प्रोग्राम मेमोरी इधर है 00002FFFF एंड डेटा मेमोरी इधर है 00002FFF। मतलब सेम एक एक लोकेशन दो करके है, एक प्रोग्राम मेमोरी में है, एक डेटा मेमोरी में है। तो ये है प्रोग्राम मेमोरी और कोड मेमोरी से ये डेटा कॉपी हो रहा है, इसीलिए। इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सर कोड मेमोरी प्रोग्राम मेमोरी का अनदर नेम है क्या? कोड मतलब ही प्रोग्राम है सर। कोड लिखना मतलब ही तो प्रोग्राम लिखना।
हाँ तो वही मतलब सेम हो गया वो। सेम। ओके। इट्स क्लियर? यस सर। ओके। सर जैसे अगर कोड मतलब अगर एक्स कोड का यूज करेंगे तो वो डाटा मेमोरी से लेगा। हेक्स कोड मतलब मूव एक्स अगर लिखते हैं हम लोग तो वो हाँ, डाटा मूव एक्स मेमोरी लिखेंगे तो डेटा मेमोरी से लेगा। और अगर क्या था सी रहेगा तो वो प्रोग्राम मेमोरी से लेगा। हाँ हाँ। ओ, अच्छा ओके सर। एनी क्वेरीज? আমি একটু দেখছি ক্লাস। सबका क्लियर हुआ? कैन आई प्रोसीड? किसी का कोई क्वेरीज है तो बताओ, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। ओके, आई एम कमिंग इनटू द नेक्स्ट स्लाइड। Just see, it's a MoveX. It's a MoveX. Means it's the external data moves. Means external data memory. Means external data memory. From external memory से तुमको लेना है तो MoveX यूज करना है। External memory से लेना है तो तुमको MoveX यूज करना है। Is it clear? Is it clear to all of you? सर ये DPTR है लेकिन इसमें DP मतलब DPH और DPL का क्या काम है? DPTR एक बड़ा रजिस्टर है, जैसे HL रजिस्टर पेयर था ऐसे DPTR है। इसके अंदर दो पार्ट है, एक हायर पार्ट को बोलता है DPH और लोअर पार्ट को बोलता है एक साथ DPL। ये DPH या DPL दोनों मिलके DPTR रजिस्टर। इज इट क्लियर? यस। देखो इधर RP भी किया हुआ है, MoveX a@RP। मगर ऐसा भी एक था, ऐसा भी एक एग्जांपल था, move a@r0। अभी ये ऐसा भी एक है MoveX a@r0। अभी दोनों में डिफरेंस क्या है? ये इंस्ट्रक्शंस मूव में भी था, अब इसका डिफरेंस क्या है? बोलो। बोलो। सर पहले वाले में तो R0 का जो कंटेंट होगा उस एड्रेस का जो डाटा होगा वो A में आ जाएगा। वो आ जाएगा, इसमें तो वही फंक्शंस है, मगर एक्स कैसे दे दिया? एक्स मतलब एक्सटर्नल मेमोरी। R0 का जब कंटेंट होगा, R0 का कंटेंट होगा 0027F, तब ये इंस्ट्रक्शन यूज्ड होगा। जब R0 का कंटेंट होगा 802FF, तब जाके ये इंस्ट्रक्शन यूज्ड होगा। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? एग्जाम्पल नंबर 3 इज रॉन्ग एग्जाम्पल दिया है। इधर 7F नहीं होगा, इधर 8F हो सकता है। 80 से FF होगा R0 का वैल्यू, नहीं तो MoveX नॉट पॉसिबल। MoveX इज ओनली पॉसिबल इफ R0 का कंटेंट 80 से FF होगा, क्योंकि 00 to 7F को हम लोग बोलते हैं इंटरनल रैम। इंटरनल रैम
इंटरनल रैम नहीं हो पाएगा, इंटरनल रैम होगा तो ये इंस्ट्रक्शन इज नॉट वैलिड, देन मूव। इफ इट्स नॉट a internal RAM, then it's a MOVX. It's clear? It's clear to all of you? यस सर। Yes, yes. Next, XCH. XCH. Full form exchange. Exchange A, RR. XCH A, RR. RR means say R0. तो क्या होगा? Before the instructions, say accumulator is 12 and R0 is 34. So after the instructions क्या होगा? तुम लोग बोलो। एक्सचेंज होगा तो मतलब क्या होगा? बोलो। फिर R0 में हो जाएगा 12 12 और एक्यूमुलेटर में हो जाएगा 34. Is clear? Number 4 is very very important. XCHD A, at the rate of R0. देखो एक इंस्ट्रक्शन है XCH और दूसरा इंस्ट्रक्शन है XCHD. Is it clear? One instruction है XCH and another instruction is XCHD. Is it clear to all of you? यस सर। अभी इसका फंक्शंस क्या है XCHD का? मान के चलो बिफोर द इंस्ट्रक्शंस एक्यूमुलेटर में है 12, R0 में है 32, 32H में है AB. अभी आफ्टर द इंस्ट्रक्शंस इट विल बी accumulator will be change, R0 will be unchanged 32 and 32H will be change. अभी क्या चेंज होगा? था क्या 12 लोअर निबिल मतलब 2 के साथ ए B का एक्सचेंज होगा, 2 के साथ B का एक्सचेंज होगा, एक्यूमुलेटर में हो जाएगा 1B एंड 32H में हो जाएगा A2. Is it clear? सर रिपीट कीजिए once more. XCHD A, at the rate of R0 फंक्शंस क्या है? बिफोर द इंस्ट्रक्शन मैंने पकड़ लिया, एक्यूमुलेटर में 12 है, R0 में 32 है, 32H में AB है, राइट? ये AB के लोअर निबिल मतलब AB के साथ ये जो 2 है इसका एक्सचेंज होगा, तो एक्यूमुलेटर में क्या हो जाएगा? 2 का एक्सचेंज होके B के साथ तो B आ जाएगा, तो एक्यूमुलेटर में हो जाएगा 1B, R0 में जो था वही रह जाएगा, 32H में क्या हो जाएगा? AB था मगर 2 के साथ एक्सचेंज हुआ तो A2 हो जाएगा. Is it clear or not? सर सिर्फ लोअर निबल ही क्यों चेंज हो रहा है? लोअर निबल ही एक्सचेंज होगा, यही काम है. अब तुम दोनों एक्सचेंज करना है मतलब AB के साथ 12 को एक्सचेंज करना है, इसके लिए तो इंस्ट्रक्शन है XCH A, at the rate of RP. ये लोअर निबल का करने के लिए XCHD. XCH है जो पूरा करेगा. XCH करने से क्या होता था? एक्यूमुलेटर में हो जाता था AB एंड 32H में हो जाता था 12. XCH करने से, मगर XCHD करने से A होगा, एक्यूमुलेटर में हो जाएगा 1B एंड 32H में हो जाएगा A2. इट्स क्लियर? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सर यहाँ D का क्या मतलब है? D मतलब लोअर निबल. हायर निबल को चेंज करना होगा तो हायर निबल का चेंज करने का कोई ऑप्शंस नहीं है, हम लोगों के पास सिर्फ लोअर निबल का ही चेंज करना है. अभी हायर निबल को Okay, चेंज करना है तो कैसे करेंगे वो हम आ रहे हैं. स्वैप बोल के एक इंस्ट्रक्शन होगा, स्वैप, हम आएंगे बाद में. स्वैप मतलब इंटरचेंज द निबल. चलो नेक्स्ट आते हैं. पुश पॉप इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. पुश पॉप तुम लोग अभी भी 85 में भी बहुत कुछ पढ़े हो, मगर पुश पॉप थोड़ा हम एग्जांपल के साथ दिखाएंगे इधर.
इधर पुश होने से इंक्रीमेंट होता है स्टैक पॉइंटर, एंड पॉप होने से डिक्रीमेंट होता है, पुश होने से पहले इंक्रीमेंट होता है, उसके बाद डेटा कॉपी होता है, पॉप होने से पहले डेटा कॉपी होता है, उसके बाद डिक्रीमेंट होता है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। चलो अभी देखते हैं क्या कैसे फंक्शन होता है। देखो क्या दिया है, मूव R6, 25, मतलब R6 में क्या होगा, R6 रजिस्टर के अंदर क्या स्टोर होगा बोलो? 25। R6 में 25 होगा। वेरी गुड। R6 का लोकेशन कितना है? बैंक तो कुछ बोला नहीं हमने, तो कौन सा बैंक होगा? जीरो, बैंक सर जीरो। जीरो। बैंक जीरो। R6 का लोकेशन क्या है? 06। 06। तो 06H में 25 हो जाएगा। पता चला कि नहीं बोलो? इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। अभी नेक्स्ट R1 में 12H, मतलब क्या होगा R1 में? 01 में 12 हो जाएगा। हाँ, इसका मतलब है 01H में 12H हो जाएगा। सिमिलरली R4 में F3, देखो सारा में जीरो नहीं लगाया, सिर्फ F3 जब दिया है तो उसके अंदर जीरो लगा दिया। तो R4 में जीरो, F3 मतलब कौन सा मेमोरी लोकेशन में होगा? F3। R4 मतलब कौन सा? 04। 04H। ओके। बाय डिफॉल्ट स्टैक पॉइंटर का वैल्यू 07 होता है। क्यों होता है? बाय डिफॉल्ट कौन सा बैंक यूज होता है तुम्हारा? बैंक जीरो। बैंक जीरो। जीरो। वेरी गुड। बैंक जीरो किधर से किधर है? सर 00 से 07। 00 से 07, राइट। अभी देखो एसपी का वैल्यू मैंने बाय डिफॉल्ट क्या सेट किया? 07। तो पहले एक इंक्रीमेंट होगा। स्टैक पॉइंटर का बाय डिफॉल्ट वैल्यू 07 ही होता है। तुम रीसेट करो उसके बाद भी 07 ही आएगा। तो स्टैक पॉइंटर क्या हो जाएगा एक बार के? 08। पहले इंक्रीमेंट होगा देन कॉपी होगा। अभी पुश 6 मतलब 6 मेमोरी लोकेशंस में क्या डेटा था? 6 मेमोरी लोकेशंस में क्या डेटा था? 25H। वो स्टैक में आ जाएगा। इट्स क्लियर? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सर एक बार Can you repeat ये it once again? चार्ट हाँ। में बता दीजिए ना, जो चार्ट से? ग्राफ है, मतलब हाँ चार्ट से कैसे हुआ है? चार्ट से मतलब? जो स्लाइड, हाँ स्लाइड से सर बता दीजिए। स्लाइड से ही बता रहे हैं। R6 में 25 स्टोर हुआ है, ओके सर। मतलब 06 में H में 25 स्टोर हुआ है, हाँ या ना? यस सर। ये मैंने समझाया कॉपी में। R6 में 25 स्टोर होना मतलब 06H में 25 स्टोर होना, एक ही बात है, हाँ या ना? यस सर। उसका लोकेशन सिर्फ एक ही हाँ बोल रहा है, बाकी सब हाँ नहीं बोल रहा है, मतलब बाकी को समझ में नहीं आ रहा है तो बोलो। वेरी गुड। तो R1 में 12H मतलब क्या? 01H में 12H। R4 में देखो उसके बाद क्या? R4 में F3H। R4 में F3H मतलब 04 में F3H। यस सर। It's clear to all? Yes sir. Very good. R4 में F3H। नेक्स्ट पुश 6 करने से क्या होगा बोलो तो? सिक्स टाइम इंक्रीमेंट होगा सर। ना, पुश 6 करने मतलब 6H मेमोरी लोकेशन में जो डेटा है वो आ जाएगा स्टैक में। स्टैक में जाने से पहले याद रखना, म्यूट कर दो, जो यूज नहीं कर रहा म्यूट कर दो, नॉइज आ रहा है। जो मान के चलो पुश करने से पहले स्टैक पॉइंटर इज इंक्रीमेंटेड बाय 1, सो स्टैक पॉइंटर पहले बाय डिफॉल्ट रहता है 07, सो एक इंक्रीमेंट करने से क्या होगा? 08। अभी बोलो बैंक 1 का रेंज क्या है? सर 00 to 7F। 08 से 0F। यस सर। याद है तो बोलो, नहीं है तो बोलो, हम फिर से दिखा रहे हैं।
याद है कि नहीं? यस सर। 08 से 0F, बैंक 0 का 00 to 07 बाय डिफॉल्ट रजिस्टर यूज होता है, बाय डिफॉल्ट रजिस्टर यूज होता है बैंक 0। बैंक 0 के लिए रजिस्टर यूज होता है R0 to R7, बट स्टैक के लिए बैंक 1 यूज होता है। स्टैक के लिए इट विल बी यूज्ड बैंक 1। इज इट क्लियर? Yes, sir. स्टैक के लिए यूज्ड होगा बैंक 1। सो 08 से 0F is nothing but the locations 08 to 0F is for bank 1। तो देखो एक के साथ दूसरा स्टैक के साथ रजिस्टर का ओवरलैपिंग नहीं हो रहा है, उसका अलग हो रहा है, इसीलिए स्टैक पॉइंटर का वैल्यू 07H है। जैसे कब कोई भी डेटा तुम स्टैक में घुसाना चाहते हो वो 08 से घुसने का शुरू करेगा, मतलब बैंक 1 से शुरू करेगा, वो बैंक 0 को टच नहीं करेगा, क्योंकि बैंक 0 का रजिस्टर तुम यूज कर रहे हो। तुम रजिस्टर भी यूज करोगे और उसके साथ स्टैक भी यूज करोगे तो क्या प्रॉब्लम होगा, तुम्हारा एक दूसरे को डेटा को डिलीट कर देगा, मतलब तुम्हारा डेटा डिलीट हो जाएगा। अभी तुम कोई बैंक से सिलेक्शन कर ही सकते हो और तुम स्टैक पॉइंटर का वैल्यू चेंज भी कर सकते हो, मगर बाय डिफॉल्ट वैल्यू रहता है वो 07H। तुम चेंज करना चाहते हो तो तुम चेंज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो पुश 6 करने से क्या होगा, 6 मेमोरी लोकेशंस का जो कंटेंट है वो आ जाएगा स्टैक में। तो क्या होगा, स्टैक पॉइंटर फर्स्ट इंक्रीमेंटेड बाय 1, तो 07 के साथ एक जोड़ने से कितना होगा, बोलो? 08। तो 08H में क्या होगा, 25H स्टोर हो जाएगा। 08 में 25H स्टोर हो जाएगा। इज इट क्लियर? यस सर। 08H में 25H स्टोर हो जाएगा। अभी देखो फिर पुश 1 मेमोरी लोकेशन में क्या है सर? 12H। 12H। सो ये जो 12H है, ये 12H स्टैक पॉइंटर को एक बढ़ा के 09H में 12H स्टोर हो जाएगा। 08 था उसको एक बढ़ाया, अभी उसी मेमोरी लोकेशन में 12H स्टोर हो गया। फिर पुश 4 मेमोरी लोकेशन में क्या था सर? F3H। F3H। फिर से जब पुश 4 करेंगे हम इसको एक बढ़ाएंगे तो 09 से हो जाएगा 0A, और 0H मेमोरी लोकेशंस में 4 मेमोरी लोकेशंस का जो डेटा है F3 वो स्टोर हो जाएगा। It's clear to all of you? It's the function of push. After push 6, after push 1 and after push 4. पुश 6 के बाद क्या होगा, स्टैक पॉइंटर जो था उसको एक बढ़ाएगा और 6 मेमोरी लोकेशन में जो 25 था उसको स्टैक में लाया। पुश 1 के बाद क्या होगा, स्टैक पॉइंटर में क्या था इसके पहले 08, उसको एक बढ़ाया 09 किया और जो 01 मेमोरी लोकेशन में है उसके डेटा को लेकर आया। पुश 4 करने से क्या होगा, पहले जो स्टैक पॉइंटर था उसको एक बढ़ाया 09 से 0A किया और जो डेटा था 04 में उसको लाया इधर 0A में। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? किसी का कुछ डाउट है तो बोलो। किसी का कुछ डाउट है? सर अगर हम लोग को 8 में ना डाल के अगर किसी और एसपी का वैल्यू में डालना रहा तो कैसे डालेंगे? क्या में डालना नहीं है? 08 में नहीं डालना है मेरे को, अगर किसी और में डालना है तो? तुमको पहले एसपी में पहले वैल्यू चेंज कर देना है। कैसे? मूव एसपी कॉमा हैश 54H 54H करेंगे, मूव एसपी कॉमा हैश 54H करेंगे तो स्टैक पॉइंटर का वैल्यू क्या हो जाएगा, 07 से चेंज होकर 54H हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टोर होगा 55H से। 55H में जो डेटा है वो स्टोर करेगा पहला। जैसे 07H था इसलिए 08 से स्टोर किया, अभी वो होगा तो दूसरा स्टोर होगा। इट्स क्लियर? यस सर। So that is the function actually. Can I proceed? Yes sir. This is the pop. पॉप में गड़बड़ है, ये पॉप 5 नहीं होगा, पॉप 1 होगा, ये पॉप 2 नहीं होगा, पॉप 6 होगा। इधर में जो है पॉप 4, पॉप 1, 6, इधर होगा पॉप 4, इधर होगा पॉप 1 और इधर होगा पॉप 6। चलो स्टैक में मान के चलो पहले से ये डेटा स्टोर हुआ है, ठीक है।
अभी पॉप 4 करेंगे मतलब 04H में ये जो डेटा है, ऊपर वाला जो डेटा है वो चला जाएगा 04H में, पॉप 4 में चला जाएगा ये जो टॉप ऑफ द स्टैक में जो कंटेंट है, एकदम ऊपर में जो कंटेंट है वो चला जाएगा पॉप 4 मतलब 04H मेमोरी लोकेशंस में चला जाएगा और R4 रजिस्टर में चला जाएगा। तो ये 54 चला जाएगा। क्या पढ़ा रहेगा? F9 76 जो था वो पूरा रहेगा, सिर्फ 54 चला जाएगा। अब स्टैक पॉइंटर क्या था? 0 था, उसको घटा के 0A भी हो जाएगा। नेक्स्ट फिर पॉप 1 करने से क्या होगा? इधर से टॉप वाला जो कंटेंट है वो चला जाएगा और स्टैक पॉइंटर 0B से 0A से घट के 09 हो जाएगा। फिर से पॉप 6 करने से क्या होगा? फिर से 76 चला जाएगा, जो स्टैक पॉइंटर 09 था उसको घटा के 08 हो जाएगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस किसी का सर। कोई क्वेरीज है? किसी का कोई क्वेरीज है तो बताओ। नो सर। ओके, सॉरी। मूव C, B, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन हियर। सी रजिस्टर मैंने पढ़ाया कभी? हाँ, सी रजिस्टर पढ़ाया? सी रजिस्टर मैंने जो बोला है उसके अंदर था कभी? R02 R7 था, A था, B था, C था? नो सर। नो सर। इधर No, C sir. treated as a carry flag, C treated as a carry flag and ये B जो है एक एड्रेस मान के चलो मैंने दिया मूव C, 32H, तो ये 32H अभी हेक्साडेसिमल जो ABC स्टोर कर सकता है ऐसा नहीं, ये एक बीट एड्रेस जो 20 to 2F के अंदर बिलोंग्स करता है, जो 20 से 2F बिलोंग्स करता है। दिस इज नॉट ए बाइट एड्रेस, दिस इज अ बीट एड्रेस। इस बीट एड्रेस में आइदर इट इज स्टोर 1 और 0, एनीथिंग इज यू नो स्टोरिंग। सो कोई भी डेटा को तुम इधर स्टोर कर सकते हो 32H के अंदर। इज इट क्लियर? इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू? रिपीट सर एक कीजिए। बार रिपीट कर दीजिए ना। Sir, repeat. हाँ, ये 32H is not storing any A B C D like that. 8 bit data not store नहीं करेगा। ये एक बीट एड्रेस है। बीट एड्रेस मतलब इधर आइदर 1 स्टोर हो सकता है और 0 स्टोर हो सकता है। इधर आइदर 1 स्टोर हो सकता है और 0 स्टोर हो सकता है। दिस इज नॉट ए बाइट एड्रेस, दिस इज अ बीट एड्रेस। 32H इज अ बीट एड्रेस। इधर में आइदर 1 स्टोर हो सकता है और 0 स्टोर हो सकता है। जो 1 0 जो भी स्टोर है वो कैरी फ्लैग में कॉपी हो जाएगा। ये बीट एड्रेस आ रहा है किधर से? मैंने तुम लोगों को बोला था 20 to 2F, ये जो लोकेशन है इस लोकेशन के अंदर बहुत सारा बीट एड्रेस है। ये जो बीट एड्रेस है ये है बीट एड्रेस, तुम्हारा याद रहेगा। तो ये है बीट एड्रेस 20 से 2F। ये जो लोकेशन है एक इसको हम लोग बाइट एड्रेस बोलते थे और ये जो बीट एड्रेस बोलते थे ये 00 से लेकर 7F तक। इसके अंदर सारा का सारा बीट एड्रेस है, हर एक में एक एक करके कॉपी कर सकते हैं। जैसे मैंने 32H के बारे में बोल रहा था, ये 32H होगा। मैंने इंटरनल रैम का पूरा स्ट्रक्चर बोलेंगे तो ये है इंटरनल रैम का पूरा स्ट्रक्चर। देखो ये जो सारा है ये है सारा है बाइट एड्रेस। बाइट एड्रेस के अंदर भी बीट एड्रेस है। देखो इधर में भी 24 है और इधर में भी 24 है। अब इसके बीच में डिफरेंस क्या है? ये है बीट एड्रेस, इसके अंदर 0 और 1 स्टोर कर सकते हो, मगर इसके अंदर तुम 8 बिट स्टोर कर सकते हो। क्यों? देखो 8 घर है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बिट यू कैन स्टोर, मतलब 1 बाइट यू कैन स्टोर। बट इधर में ये जो सारा ब्लॉक है इसमें सिर्फ एक एक करके बिट कर सकते हो। अभी माइक्रो प्रोसेसर को कैसे पता चलेगा? जैसे मैंने ऐसा लिख रहा हूँ मूव C, मूव A, 32H। माइक्रो प्रोसेसर का कैसे पता चलेगा ये 32H बिट एड्रेस होगा और बाइट एड्रेस होगा? माइक्रो प्रोसेसर को कैसे पता चलेगा बोलो तो? माइक्रो प्रोसेसर को पता चलेगा ये देख के, ये C है C मतलब देख के। कैरी फ्लैग, मतलब 1 बिट का है तो ये बिट एड्रेस के हिसाब से काम करेगा। A है एक्यूमुलेटर है, एक्यूमुलेटर मतलब इज अ 8 बिट रजिस्टर, 8 बिट रजिस्टर। सो ये बाइट एड्रेस के हिसाब से काम करेगा। बाइट एड्रेस। इज इट क्लियर? Yes, sir.
सो कैरी फ्लैग से बिट एड्रेस से कैरी फ्लैग और कैरी फ्लैग से बिट एड्रेस दोनों भी हम लोग कॉपी कर सकते हैं। ये प्रोग्राम है, तुम्हारा घर में लिखना है, इसका क्वेश्चन राइट कर लो, लिख लो और स्क्रीनशॉट पिक्चर कुछ भी ले लो, इसको तुम्हारा होमवर्क है। Is it clear? Can I proceed? Yes, sir. Yes, sir. ANL A, हैश n क्या फंक्शंस होगा? ANL A, हैश n ANL मतलब एंड ऑपरेशन, लॉजिकल एंड ऑपरेशन। जैसे ANL A, हैश 0FH क्या होगा? ANL A, हैश 0FH करने से बोलो 85 में मैंने कराया है, बोलो। बिफोर द इंस्ट्रक्शंस एक्यूमुलेटर में बी AB AB मतलब बाइनरी में 10101011, राइट। 0F मतलब बाइनरी में 00001111, am I right? ये पता चला, ये है AB, ये है 0F। हाँ या ना में बोलो। Yes, sir. Yes, sir. तो लॉजिकल एंड करो, और लॉजिकल एंड मतलब 1 1 में ही सिर्फ 1 होता है, 0 1 में 0, 1 0 में 0, सारा में 0, 0 B। So after the instructions accumulator will be 0B। ये इंस्ट्रक्शन से हम लोग बोलते हैं क्लियर द हायर निबल। देखो A को क्लियर कर दिया, इसको 0 कर दिया। ऐसे इंस्ट्रक्शन हम लिखेंगे ANL A, हैश F0 0F0H, तो क्या होगा करके देखना। इसमें करने से हमको ये A0 आएगा रिजल्ट, मतलब लोअर निबल को 0 कर देगा। लोअर निबल क्लियर हो गया, लोअर निबल क्लियर हो जाएगा। इज इट क्लियर? सिमिलरली सारा एंड ऑपरेशन ए एड्रेस के साथ होता है, एड्रेस के साथ डेटा भी हो सकता है। आरपी मतलब कोई रजिस्टर से भी कर सकते हो, R0 R1 कुछ भी कर सकते हो, रजिस्टर टू रजिस्टर भी कर सकते हो। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर? यस सर। अभी ANL के जगह में और ऑपरेशन कर दो, ORL एंड XRL, और ऑपरेशन XOR ऑपरेशन। ORL means OR operation and XRL means XOR operations. Is it clear? XRL means XOR operations. It's clear to all of you? सर एक बार और वाला स्लाइड दिखलाइए ना। सेम इंस्ट्रक्शंस है, सिर्फ ANL is replaced by ORL. ANL is replaced by ORL. सेम सर इंस्ट्रक्शंस जैसे है। उधर एंड ORL ऑपरेशन करते थे वैसे इधर और ऑपरेशन होगा ना? की बोल रहा हूं? और आज बहुत देर तक क्लास चलेगा। हाँ बोलो बोलो हाँ बोलो सर, बोलो। जैसे पहले एंड ऑपरेशन कर रहे थे वैसे ORL में और ऑपरेशन और होगा, ऑपरेशन फिर होगा, XOR और XRL में XOR ऑपरेशन होगा। बात एक ही है और कुछ नहीं। सेम इंस्ट्रक्शंस है, सेम फंक्शंस है। और ऑपरेशन मतलब क्या? 1 1 में भी 1, 0 1 में भी 1, राइट? यस सर। और XOR ऑपरेशन मतलब सेम इनपुट 0 आउटपुट, डिफरेंट इनपुट 1 आउटपुट। में से इधर में सिर्फ 1 होगा 0 1 में, बाकी इधर में 0, इधर में 0, इधर में 0 होगा। ठीक है? Next, CLRA. CLRA means clear accumulator. Before the instructions, CLRA means before the instructions, accumulator may be any value, maybe XY, but after the instructions, accumulator should be
0 0. Is it clear? Is it clear? Yes, sir. कोई भी वैल्यू रहे 0 हो जाएगा. Next CPLA. It's also important. A is say AB before the instructions. So after the instructions क्या होगा? 1 0 1 0 1 0 1 1. After the instructions क्या होगा? बोलो. सारा का सारा one's complement. 1 होगा तो 0 0 1 0 1 0 1 0. मतलब हो गया 5 4. So after the instructions हो जाएगा accumulator में 54. Is it clear? Yes, फर्स्ट sir. कॉम्प्लीमेंट कर दिया ना सर? हैं? सर फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट कर दिया ना सर बाइनरी हाँ, नंबर? one's complement 0 से 1 1 से 0. सिर्फ one's complement ही होता है इधर. Next is बीट को लेकर. अभी हम लोग जो कर रहा था सब बाइट को लेकर. अभी हम लोग जो करेंगे सब बीट को लेकर. AN ऑपरेशन मतलब लॉजिकल एंड ऑपरेशन बिटवीन कैरी फ्लैग एंड द पर्टिकुलर बीट एड्रेस. ORL operation between carry flag and the particular bit address. Is it clear to all of you? AND operation and OR operation XOR गेट नहीं होता है. AND and OR operations carry flag and bit address. इसके बारे में और इसके बारे में हम बोल रहा हूँ. CPL मतलब complement carry flag, CPL मतलब complement bit address, CLR मतलब clear carry flag, CLR मतलब complete bit address. set B मतलब carry flag को set कर देना. set B मतलब जो बीट एड्रेस देंगे हम उसी को 1 कर देंगे. ये कैरी फ्लैग को 1 करेगा, ये बीट एड्रेस को 1 करेगा. जैसे 32H 40H कुछ भी दो तो वो हो जाएगा. जैसे हम लोग दिया था PSW.3 PSW.4 हमको शायद तुम लोगों को याद होगा. तो इज इट क्लियर? सर इसमें अगर हम लोग बिट में करेंगे एंड ऑपरेशन तो फिर रिजल्ट कहाँ स्टोर होगा? एक्यूमुलेटर में ही होगा क्या? कैरी में ही होगा. कैरी में ही होगा. मान के चलो ANL C, 32H. इधर 32H में एक ही बीट रहेगा. बिफोर द इंस्ट्रक्शन कैरी फ्लैग में मान के चलो 1 है, बट 32H में मान के चलो 0 है. तो 1 और 0 का लॉजिकल एंड करने से क्या होगा? बोलो. सर 0 0 हो गया. हाँ 0 हो गया. तो एक्यूमुलेट कैरी फ्लैग में हो जाएगा. कैरी फ्लैग में हो जाएगा 0. 32H में हो जाएगा 0. ओके. इसमें एक स्लैश रह जाएगा. एक स्लैश रह जाएगा तो क्या होगा? इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. 32H में क्या था? 0. उसको 0. कॉम्प्लीमेंट करेगा. कॉम्प्लीमेंट करने से कॉम्प्लीमेंट भी हो जाएगा. उसको 1. तो 1 के साथ 1 कितना होगा रिजल्ट? 1. इधर में भी 1, इधर में भी 1. कॉम्प्लीमेंट भी कर देगा. फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट करेगा, देन उसके साथ लॉजिकल एंड करेगा. इट्स क्लियर? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर. सर पहले कॉम्प्लीमेंट होगा बाद में लॉजिकल ऑपरेशन होगा. यस. पहले कॉम्प्लीमेंट होगा उसके बाद लॉजिकल ऑपरेशन होगा. ओके सर. It's a rotation. Rotate accumulator right bit positions 1 bit. RLA. RLCA rotate accumulator and carry flag. जो मैंने पढ़ाया था 85 में सेम. RLA मतलब rotate accumulator 1 bit positions through left. मतलब right to left 1 bit positions. हम दिखाए क्या? ना जरूरत नहीं है. Accumulator के मान के चलो AB है 1 0 1 0 1 0 1 1. Left side my this side, this is my right side, so all the bit will be shifted by 1 bit positions, something like that. Is it clear? तो क्या होगा बोलो? 0 1 0 1 0 1 1 1. मतलब 5 7 57 will be stored into the accumulator after the instructions. Is it clear?
Is it clear to all? Yes, sir. Yes, sir. Similarly, एक कैरी को लेकर होगा, मतलब एक कैरी फ्लैग भी रहेगा बीच में, उसको लेकर भी होगा। मैंने 85 में बोला था जो सेम टू सेम है, वैसा सिमिलर ही है सर। एकदम सिमिलर। एंड स्वैप मींस जो हम बोल रहा था पहले, ये लोअर निबल एंड अपर निबल में एक्सचेंज होगा। मतलब एक्यूमुलेटर में मान के चलो ए बी है, तो आफ्टर द इंस्ट्रक्शंस हो जाएगा एक्यूमुलेटर में बी ए, मतलब जस्ट रिवर्स, ए बी विल बी रिप्लेस्ड बाय बी ए। इज इट क्लियर? द वेरी सिंपल वन। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। तुम स्वैप और दूसरे उपाय भी कर सकते हो। कैसे बोलो तो? मैंने बोला था, बोलो। 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 अरे कैसे कर सकते हो स्वैप छोड़ के? दूसरा कोई उपाय नहीं है? सर रोटेट करके। आरएलसी आरसी नो नहीं सर, सी उसको नहीं 4 होगा। बार यूज करेंगे हो जाएगा। RLA और RRA कैरी को लेकर करने से तो नहीं होगा। 4 टाइम्स कुछ भी करो ऐसा ही आ जाएगा। कैरी को लेकर नहीं, कैरी को छोड़ के। नेक्स्ट इज इंक्रीमेंट। हमारा कुछ बोल नहीं रहा है इंक्रीमेंट के बारे में। सब INCA मतलब A is equal to A+1, INCA मतलब A is equal to A+1, okay? INC-RR means RR is equal to RR+1. Is it clear? सर INC-RP क्या होगा बोलो तो? ये फंक्शंस, इसका फंक्शंस क्या होगा बोलो तो? INC एड्रेस क्या होगा बोलो तो? बोलो कोई ना कोई। इजी है सर। एड्रेस इंक्रीमेंट मतलब एड्रेस में जो कंटेंट है वो इंक्रीमेंट हो जाएगा। एड्रेस में जो कंटेंट है वो एक बढ़ेगा। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर टू ऑल? यस सर। अच्छा यस नेक्स्ट बोलो। नेक्स्ट बोलो। सर आरपी वाला है INC@RP। सर उसमें R0 R1 ही रहेगा एड्रेस, मतलब जो भी है रजिस्टर उसके में। अंदर क्या होगा, उसके क्या फंक्शंस क्या होगा? सर R0 या R1 का जो भी कंटेंट है का जो एड्रेस है उसमें एक 1 इंक्रीमेंट हो जाएगा। मतलब INC@R0 करेंगे, R0 के अंदर मान के चलो 32 है, तो आफ्टर द इंस्ट्रक्शंस तुम बोल रहे हो R0 में 32 3 हो जाएगा। हाँ बोलो बोलो। 32H मेमोरी लोकेशंस में जो है मान के चलो AB है, तो R0 में 32 ही रहेगा। 32H मेमोरी लोकेशंस में जो होगा वो AC हाँ होगा। वो AB कंटेंट बढ़ेगा। AB+1 यस होगा, AC हो जाएगा। AB+1 यस सर। ठीक है। Is it clear to all of you? Ankita, is clear to you? Yes, sir. INC DPTR. Remember, INC DPTR is possible, but DEC DPTR is not possible. अभी डिक्रीमेंट होगा इसके बाद, तो इंक्रीमेंट सारा का हो सकते हैं, मगर DPTR का डिक्रीमेंट नहीं हो सकता। उतना इंस्ट्रक्शंस नहीं है इन लोगों के पास। मतलब जो जितना इंस्ट्रक्शंस हुआ था उसमें DEC DPTR नहीं पॉसिबल हुआ था।
इसलिए INCDPTR possible but DECDPTR is not possible. देखो DEC सारा है, सिर्फ DECDPTR नहीं है। ओके इसके ऊपर कोई फ्लैगेस चेंजेस नहीं होगा डिक्रीमेंट में। No math flag are affected in the increment or decrement operations. Okay. 8 इसमें जैसा था 8.5 में और 8.6 में जो हम लोग डिक्रीमेंट करके देखते थे उसको 0 हुआ कि नहीं हुआ उसी के हिसाब से करते थे, मगर इधर पॉसिबल नहीं है। Is it clear? Clear to you? Yes, Yes, sir. sir. Next is add. समझ के जा रहे हो तुम लोग? add a comma has 32 मतलब क्या है? a is equal to a plus 32. Is it clear? Yes, sir. और बाकी सारा में हैश नहीं रहेगा तो उसका एड्रेस के साथ ऐड होगा। एड्रेस के साथ नहीं, एड्रेस का जो कंटेंट होगा उसी कंटेंट के साथ एक्यूमुलेटर ऐड होगा। इज इट क्लियर? यस सर। राइट। ADDC मींस ADDC देंगे तो प्लस CY हो जाएगा, कैरी फ्लैग With carry. with carry. There is a no sub instruction, all are SUBB instructions means हर एक टाइम में कैरी फ्लैग को तुमको सब्सट्रैक्ट करना ही होगा। There is a no sub instructions. I'm coming into the next. SUBB full form. Sir, why, sir? No instruction उतना नहीं मिला था, इंस्ट्रक्शन लिमिटेड है ना, 002FF इतना ही हेक्स कोड हो सकते हैं ना, इसमें तुम 256 ही इंस्ट्रक्शन दे सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। तो 256 हो जाएगा तो वो तो डिपेंड करेगा जो बना रहा है माइक्रो कंट्रोलर उसके ऊपर। 256 का ज्यादा तो इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते है ना, इसीलिए नहीं दे पाया। SUBB A कॉमा हैश 32 मतलब क्या है? A is equal to A minus 32 minus CY। Yes, sir. यह फंक्शन हम बाकी अब डिटेल्स में नहीं जा रहा है, बाकी तो सब सेम ही है। इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. ऐड सब हो गया। अभी मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन हम नेक्स्ट दिन से कराएंगे, अभी हम नहीं करा रहे हैं, कल हम फिर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन से स्टार्ट करेंगे। सर यहाँ पे विद कैरी फ्लैग ले रहे हैं, ये हमको समझ नहीं आ रहा सर। देखो ए है ADD राइट, ADD मतलब Addition. ADD A कॉमा हैश 32 मतलब A is equal to A plus 32 प्लस 32 and another instructions है ADD C A कॉमा हैश 32। इंस्ट्रक्शन सेम ही है मगर इसमें C है इसमें C नहीं है, तो इसमें क्या होगा? A is equal to वहाँ पे कैरी फ्लैग विद कैरी फ्लैग ले रहे हैं ना सर? हाँ 100%। ठीक है सर समझ। A is equal to A plus 32 प्लस कैरी फ्लैग पिछला जो बार का था, कोई मतलब कोई एडिशन सब्सट्रैक्शन का जो कैरी फ्लैग का जो कंटेंट था वो भी इसके साथ जुड़ जाएगा। तो नेक्स्ट दिन हम मल्टीप्लिकेशन पढ़ाएंगे, नेक्स्ट दिन मतलब टुमारो। हम लोग थोड़ा बहुत दिन क्लास नहीं हो पाया, बहुत दिन क्लास नहीं हो पाया। कितना दिन क्लास नहीं हुआ? एक सप्ताह के ऊपर हो गया ना। Yes, sir. चलो कोई भी तुम छोड़ के कोई दूसरा कोई एक ये दिखाओ तो अच्छा होगा। कोई प्रोग्राम दिखाओ दूसरा। एक ही प्रोग्राम मत दिखाओ, तुम चार्ट दिखाओ। आशीष तुम चार्ट दिखाओ, सोनम का प्रोग्राम देख रहे हैं हम। अच्छा
आशीष पेज नंबर 1 में जाओ, मैं इसीलिए बोला पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, पेज नंबर 4। पेज नंबर 1 में पहले जाओ, 1 से शुरू करेंगे ना। सोनम, ये प्रोग्राम छोड़ के कोई मेमोरी लोकेशन से लिखे हो ऐसा कोई प्रोग्राम है? कोई छोटा बड़ा कुछ भी, छोटा प्रोग्राम होने से भी चलेगा। वेरी गुड। सोनम का बैंडेज उतना अच्छा नहीं है, दिख नहीं पा रहे हम। अच्छा, तुम प्रोग्राम किधर से शुरू किए हो? सर 8100H से वेरी गुड, एलेक्सा। वेरी गुड, वेरी गुड। पहले पहले पॉइंट क्या है? अच्छा, ऊपर में क्या लिखा है? एक्सपेरिमेंट नेम। सब दिख रहा है? एक्सपेरिमेंट नेम लिखा हुआ है। यस सर। एक्सपेरिमेंट नेम में जो प्रोग्राम का नाम दिया है वो लिखना पड़ेगा। राइट एसएमएल लेवल प्रोग्राम ऐसे ना सर? हाँ। Is it clear or not? यस सर। सो जो मैंने क्वेश्चंस दिया वो एक्सपेरिमेंट नेम में देना पड़ेगा। उसके बाद क्या है? क्या नाम लिखा है? क्या लिखा है बोलो? स्टूडेंट नेम ना? यस सर, स्टूडेंट नेम। वो हमको बोलना पड़ेगा क्या? यूनिवर्सिटी रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, उसमें कोई कुछ है जो हमको बोलना पड़ेगा ऊपर में? नहीं सर, नीचे से स्टार्ट कीजिए सर। हाँ, अभी क्या लिखा है ऊपर में? ऑपरेटिंग एड्रेस, ओरिजिनेटिंग एड्रेस, ओरिजिनेटिंग एड्रेस, ओरिजिनेटिंग एड्रेस। हाँ हाँ हाँ, ओरिजिनेटिंग एड्रेस। उसके बाद क्या लिखा है? रजिस्टर्ड यूज्ड। यस सर। हाँ, उसके बाद क्या लिखा है? मेमोरी लोकेशन यूज्ड। उसके बाद क्या लिखा है? एड्रेस रेंज ऑफ रॉम। एड्रेस रेंज ऑफ रॉम, एड्रेस रेंज ऑफ रैम, ताई तो। अभी देखो, ऑपरेटिंग एड्रेस मतलब तुम्हारा कौन सा जगह से प्रोग्राम लिखे हो, कौन सा मेमोरी लोकेशन से? सर 8100H। तो ऊपर में लिखना पड़ेगा 8100H, राइट। रजिस्टर यूज्ड में कौन सा रजिस्टर यूज हो रहा है? जैसे पैसे पहले लाइन में हम देख रहे हैं HL, नेक्स्ट लाइन में शायद D ना क्या? यस सर, डी है, फिर BAC। जो रजिस्टर यूज्ड हुआ है, मान के चलो HL यूज्ड हो रहा है तो HL, D, जो ऊपर से नीचे तक जो रजिस्टर यूज्ड हुआ है उसको रजिस्टर यूज में लिखना पड़ेगा। इज इट क्लियर और नॉट? यस सर, मतलब सारा लिखना पड़ेगा। सारा लिखना पड़ेगा, जो रजिस्टर यूज्ड हो रहा है। अभी मेमोरी लोकेशन यूज्ड, इनपुट आउटपुट के लिए पहले बोलो कौन सा मेमोरी लोकेशन यूज्ड हो रहा है। देखो मैंने इनपुट आउटपुट लिखाया भी थे। एट 8700 में एक जा रहा है, और किधर जा रहा है, और किधर से आ रहा है डेटा? इनपुट आउटपुट पेज किधर है? सर ये रहा। दिख नहीं रहा है हमको, तुम बोलो देख के। 8400 से है ना? यस सर, ये इनपुट है और आउटपुट हम लोग का 8600H से है। 8400 से कितना दूर जा रहा है? 8509। अच्छा, तो उधर लिखना पड़ेगा रजिस्टर्ड यूज्ड में, मेमोरी लोकेशन यूज्ड में 8400 कॉमा, रुको 8400 कॉमा 8500H हाइफन 8509H कॉमा, थोड़ा राइट करो, आउटपुट दिखाओ। 8600H हाइफन 8604H कॉमा 8700H कॉमा। इनपुट प्रोग्राम किधर से किधर लिखे हो? 8100 से 820। ना 8200 कैसे होगा? सुनम जो प्रोग्राम दिखा रहा था देखो, 8100 से लास्ट किधर है? 820F। ना उतना दूर जा सकता है क्या? 8100 से 820F? पागल हो गया क्या? उसी में लिखा हुआ है। हट, गलत लिखा है, 820। कुछ जानते नहीं है क्या? कितना बड़ा प्रोग्राम होगा पता है? तुम्हारा कॉपी खत्म हो जाएगा। 1 से 2 किधर हो गया दिखाओ तो? 0F, 0E सर 0E के बाद 8202 कैसे हो गया?
8112 होगा। 8102 होगा। यस सर। 8102 नहीं, 8112 होगा। ओ अच्छा, यहाँ पे अच्छा ठीक है, ओके। सो 8100 से लेकर 810F1F तक। मतलब करो सारा 811F। मेमोरी लोकेशन लिखना पड़ेगा ना सर? हाँ, उतना नहीं लिखेंगे हम, हाइफन देकर, जब कंटिन्यूटी है तो हम हाइफन देकर लिख देंगे 8100-810FH। हाँ ठीक है। तो सर वैसे भी आउटपुट में भी तो वैसे लिख सकते हैं सर। आउट में भी तो ऐसा ही लिखा है, हम पूरा कैसे कब लिखे हैं? आउटपुट में मैंने, आउटपुट इनपुट में मैंने क्या बोला, 84001 है तो 8400 लिखा, कॉमा देकर मैंने लिखा 8500H हाइफन 85 कितना बोला, 098 शायद, 098। सिमिलरली Yes. कॉमा 8600H हाइफन 8604H कॉमा 8700H। जो एक है उसको तो लिखना ही पड़ेगा ना। मेमोरी लोकेशन यूज किधर किधर यूज हो रहा है। Yes, इज इट sir. क्लियर? यस सर। सर नेक्स्ट लास्ट में दिखाऊं? Yes, sir. वो जो आशीष किधर चला गया, आशीष का, हाँ आशीष यहाँ पर है सर। आशीष एड्रेस क्या दिखा रहा था? एड्रेस, सर एड्रेस Sir, रेंज ऑफ address रैम। एड्रेस range of रेंज RAM. ऑफ रॉम, एड्रेस रेंज ऑफ रॉम ये लिख लो 00000 टू 7FF तक होगा, 00000H टू 7FF, हर एक में पूरा में एक ही रहेगा। एड्रेस रेंज ऑफ रैम 8000 टू FFFF, ये तुम्हारा जो किट है लेबोरेटरी का उसमें यही है। सर कंप्लीट रोम हुआ? का कहाँ तक है? 000 रोम का 000 टू 7FFF यस, एंड रैम का 800 टू FFFF। 800 नहीं, 8000H, हाँ हाँ 000 सर। हाँ हाँ 000 टू FFFF। ओके सर। ये पूरा में पूरा कॉपी में कॉपी होगा। अभी पेज नंबर 2 फ्लो चार्ट में जाओ। हमारा फिर से मोबाइल ऑन करना पड़ेगा। फ्लो चार्ट हम तुम लोगों को एक ड्रॉ करके दिखाता है। सर सी प्रोग्रामिंग में करते थे बॉक्स हाँ बना बना हाँ, कर, वही तो वैसा है ना? भाई, वही है, और अलग कुछ है क्या? अच्छा, फ्लो चार्ट वाला हम पहले दिखा देते हैं, उसके बाद हम फिर से आ रहे हैं। ठीक है, फ्लो चार्ट में क्या होगा, मान के चलो एक एडिशंस कर रहे हैं 2 नंबर का विथ कैरी फ्लैग। ठीक है, तो क्या होगा, पहले ऐसा स्टार्ट होगा, ऑलवेज स्टार्ट ऐसा ही होगा। उसके बाद क्या होगा, एक ऐसा बॉक्स होगा जिसमें इनपुट A एंड B, इनपुट A एंड B, कुछ जो भी इनपुट ले रहा है उसको बोल देना। मेमोरी लोकेशन से ले रहा है तो बोलो वही मेमोरी लोकेशन से ले रहा है, राइट। थर्ड में फिर अगेन सेम ऐड, जो नंबर है उसको बोल देना XX एंड YY। ओके, नेक्स्ट मान के चलो कैरी फ्लैग चेक कर रहे हो तो एक कंडीशंस फ्लैग होगा ऐसा, कैरी फ्लैग 1 क्वेश्चन मार्क, यस होगा, यस होगा तो एक बॉक्स रहेगा उसमें मान के चलो इफ एल्स वाला, उसमें रहो मान के चलो C इज इक्वल टू C+1। ठीक है, हमें गलत किया है, इधर में और एक बॉक्स करना चाहिए था, इधर में और एक बॉक्स करना चाहिए था, जैसे तुम लोग किए थे C को इनिशियल एज 0, C इज इक्वल टू 0, C इनिशियलाइज एट 0, राइट। C+1 यस होगा तो, नो होगा तो इधर में आ जाएगा ए रेक्टेंगल। नेक्स्ट, उसके बाद क्या करना है, सारा में सारा एरो देना पड़ेगा। नेक्स्ट में क्या करना पड़ेगा बोलो,
अभी तो कुछ है नहीं, रिजल्ट स्टोर करना है। स्टोर रिजल्ट इधर कोई मेमोरी लोकेशन में, मान के चलो 8600 में। उसके बाद क्या होगा? हॉल्ट, स्टॉप, ना, स्टोर कैरी, स्टोर सी, कैरी। हाँ सर, वो भी स्टोर कोई ए, लोकेशन। स्टोर ए 8600, स्टोर सी मान के चलो 8601। उसके बाद हॉल्ट, हॉल्ट एंड स्टार्ट आर बेसिकली द सेम, सेम। हॉल्ट, हॉल्ट ना लिख के स्टॉप लिखो। वाह, ये है फ्लो चार्ट। इज इट क्लियर? यस सर। सर प्रोग्राम टू प्रोग्राम फ्लो चार्ट चेंज होगा सर? 100%। ये क्या प्रोग्राम के ऊपर पूरा फ्लो चार्ट चेंज हो जाएगा? एक ही फ्लो चार्ट बार बार थोड़ी ना होगा। देखो मैंने जो दिया है वो कॉपी पेस्ट का चीज ही नहीं है। कॉपी पेस्ट का चीज, हाँ एक जन लिख के दूसरा कोई कॉपी पेस्ट कर सकता है, मगर है एक लिखना पड़ेगा तो तुमको खुद जान के ही लिखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है तुम कोई दुकान में मिल जाएगा जो तुम देख के लिख दोगे। यस सर। अलग अलग का फ्लो चार्ट अलग अलग होगा। यस सर, यस सर। अभी नेक्स्ट पेज, जो मोस्ट वाइटल पेज, पेज नंबर 3। हमारा मोबाइल में थोड़ा चार्ज दे देते हैं, नहीं तो फिर हमारा एक क्लास है। तुम्हारा थर्ड ईयर का होगा। ये इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, ऊपर वाला बॉक्स हम नहीं बोल रहे हैं, ठीक है? ऊपर वाला तो एकदम सेम टू सेम है, तुम लोग लिख पाओगे ना? नहीं लिख पाओगे? लिख पाएंगे हो सर, लिख जाएगा। लेंगे। हो जाएगा सर। बोलना पड़ेगा तो बोलो वही। अच्छा, अभी जो सोनम का जो लेफ्ट हैंड साइड में है एड्रेस, है ना, एकदम लेफ्ट हैंड साइड में, वो पूरा ये एड्रेस घर में पूरा आ जाएगा, पूरा एड्रेस घर में। एनी क्वेरीज किसी का? नो सर। नो सर। अभी नेक्स्ट, सोनम कैमरा ऑफ मत करो। अभी मान के चलो, देखो सोनम का एड्रेस के बाद जो जो स्टार है, एक सिंगल, एक दिख रहा है स्टार और एक दिख रहा है डबल स्टार। तुम लोग देख पा रहे हो क्या है? 810C में एक है और 8206 में एक है। यस सर। यस। ये जो स्टार वाला, इधर वाला जो स्टार है, ये सिर्फ लेवल में रहेगा, नेक्स्ट कॉलम में। सर एक क्वेश्चन था सर। हाँ बोलो। सर अगर प्रोग्राम हम लोग सिमुलेटर में करते हैं तो ये स्टार तो नहीं रहता, उस जगह लूप होगा या नेक्स्ट होगा या हाँ, कोई भी इसीलिए कैरेक्टर लिखते इसको हैं सर। इसको हम लोग तो बोलते यहाँ हैं इसके लिए हम लोग बोलते हैं लेवल। ये लेवल देना भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तो थियोरेटिकल स्टार की जगह सर हम लोग कैरेक्टर लिख सकते हैं सर वर्ड में? हाँ करेक्टर लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम लोग लिख सकते हो सुदीप्तो 1, सुदीप्तो 2, सुदीप्तो 3, सुदीप्तो 4, सुदीप्तो 5, सुदीप्तो 6, सुदीप्तो 7 लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर हम कैरेक्टर फैरेक्टर नहीं लिखता है। क्यों? कैरेक्टर लिखने से थोड़ा बड़ा भी होता है, लिखना थोड़ा प्रॉब्लम भी होता है। दूसरा चीज है, वो ऐसा कोई इंस्ट्रक्शंस रहेगा तो प्रॉब्लम है। इंस्ट्रक्शंस नहीं है, ऐसा ही कैरेक्टर तुमको लिखना पड़ेगा। सुदीप्तो बोल के कोई इंस्ट्रक्शंस है नहीं है, इसलिए हम ओके हमारा सर। हिसाब से लिखा है। तुम लोग ऐसा करके लिख सकते हो, यू नो, गो अहेड। तुम लोग लिख सकते हो बैक, ऐसे करके भी लिख सकते हो। हमारा स्लाइड में ऐसा बहुत सारा आएगा बैक फैक। देखे देखो, जब पढ़ाता हूँ चौक डस्टर में, उसका उतना याद नहीं रहता है, वो स्टार फॉर बहुत जल्दी हो जाता है, इसलिए हम लोग स्टार देते हैं। देखो JNZ के बाद एक डबल स्टार है जो रेड कली से लिखा है। यस सर। वो इधर नहीं लिखना है, वो लेवल में नहीं लिखना है। वो JNZ के बाद डबल स्टार एक ब्रैकेट में लिख देना है, वो ऑपकोड एंड ऑपरेंट में जाएगा। अभी ऑपकोड एंड ऑपरेंट में क्या जाएगा, जैसे पहले से बोल रहा हूँ, LXIH ये जाएगा ऑपकोड में, ऑपरेंट में जाएगा 8, क्या लिखा है 8400 क्या ना 8500? सर 8500 है। हाँ, तो ऑपरेंट में लिखा हुआ है 8500। ऐसा भी लिख सकते हो LXI बोल के ऑपकोड में, और H,8500 ऑपरेंट में भी लिख सकते हो, उसमें कोई गलती नहीं है, दोनों ही चलेगा।
सर JNZ वाला में जो 2 स्टार है उसको मेंशन नहीं करना है लेवल में, मतलब करेंगे, लेवल में नहीं करेंगे, JNZ के बाद डबल स्टार देंगे, पीछे में नहीं होगा, उसका सामने हो जाएगा। जो तब पीछे में ऑपकोड में ही स्टार है ब्रैकेट डाल के तब लिख देंगे। बैकेट डाल के लिखना ऑपकोड में पड़ेगा। ब्रैकेट में डाल दे। हाँ हाँ, ऑपकोड में तुम बैकेट डाल के लिख दो। मगर ये प्रोग्राम किसका है सोनम? तुम्हारा प्रोग्राम कंप्लीट नहीं है, सॉरी टू से। सर कंप्लीट है ना? पता तुम नहीं सामने रहता था ना, बहुत अच्छा होता था, 2 घंटा चेयर करके रख देते थे। अभी सर, मेरा तो HLT तक हो ही गया हॉल्ट। अरे नहीं बाबा, देखो तुम वो जो स्टार के बाद कोई एड्रेस नहीं लिखे हो, और हेक्स कोड में भी C2 लिख के छोड़ दिए हो। वो देखो JNC बोल के ऊपर में एक सिंगल स्टार देके D2 बोल के छोड़ दिए हो। उसका एड्रेस लिखना पड़ेगा, किधर जाम करेगा, उसका हेक्स कोड भी साइड में लिखना पड़ेगा। ओ हाँ सर, वो समझ में नहीं आ रहा था उस टाइम पे, इसलिए छोड़ मैं दिए जितना थे। दिन जिंदा रहूंगा उतना दिन तुमको समझ में नहीं आएगा, हम मरने के बाद आएगा, ये पक्का। क्या बोल रहे हैं सर? नो सर, सोचे थे कि बाद में कभी पूछेंगे, बट भूल गए थे पूछना। हाँ यही होता है जी, हर एक दिन पूछता है कि क्वेरीज है, नहीं है। देखो JNZ के बाद डबल स्टार है, किधर में डबल स्टार है? ऊपर में कोई जगह में है, देखो। सर मूव सर के पास मूव A, M के पास, उसके सामने जो एड्रेस है, क्या नाम है उसके एड्रेस का? क्या है? 800-810C। यस सर। और JNZ के बाद अभी ठीक करो, JNZ के बाद और डबल स्टार जो है उसको बैकेट में रख के उसका बगल में लिखो 810C। स्टार को बैकेट में सर रखो, यहाँ स्टार पे डबल स्टार को, हाँ डबल स्टार को बैकेट में रखो। हाँ अभी उसके बाद लिखो 810C। हो गया। और C2 के बाद, C2 जो लिखे हो, C2 लिखे हो, उसके बाद राइट साइड में थोड़ा कैमरा दिखाओ। C2 लिखे हो ना, यहाँ पे C2। C2 के बाद, C2 के बाद लिखो ना ना ना, रे बाबा पागल, अरे बाबा क्या होगा बोलो कोई। 0C उसके बाद सर 81 हाँ हाँ 0C, 0C 81, पहले होगा फिर 81। 0C, 81। अच्छा, यस सर, हो गया। अभी ऐसा करके वो भी लिखना पड़ेगा, वो क्या नाम यहाँ है, पे JNC स्टार, JNC स्टार। और स्टार के बदले में स्टार बैकेट में लिख के वो किधर क्या लिखना पड़ेगा, वो स्टार किधर लिखा हुआ है? हो गया सर, 8206 पे है, हाँ हो उधर गया। लिखो 8206, वो तो नहीं लिखे हो। यहाँ लिख दिया। अरे हो उधर गया। लिखने से नहीं होगा, अरे पागल। ओ चले क्या किया? उस स्टार को मैंने बैकेट में रखने बोला, तुम वो स्टार को बैकेट ना रख के उसको बैकेट में रख दिया। घर किधर है तुम्हारा, रामगढ़ में है क्या? यस सर। ऐसा ही सोच रहा था। सर हो गया, आप करेक्ट कर लिया। क्लियर? सर यानी जो डबल स्टार वाला है वो टेबल में लिखना ही नहीं है। राइट साइड वाला लिखना नहीं है, लेफ्ट साइड में लिखना है। राइट साइड सिंगल वाला स्टार जैसे है यहाँ ऐसा पे लिखना है। और उसका हेक्स कोड देखो, जो जो हेक्स कोड आया है उस इसी घर घर में लिख देना है हेक्स कोड। जैसे LXI H8500 देखो 210085 लिखा हुआ है, वो हेक्स कोड का घर में पहला घर में जाएगा। हेक्स कोड का जो घर है नेक्स्ट घर ऑपकोड ऑपरेंड के बाद 21, उसके बाद 00, उसके बाद 85। समझ में आया कि नहीं आया बोलो? यस सर। इसका फंक्शंस क्या है? LXI H8500 बोलो। सर HL में 8500H आ जाता है। स्टोर 8500H इन HL रजिस्टर और लोड HL रजिस्टर पेयर 8500 और 8500H स्टोर इन HL रजिस्टर पेयर। जो भी लिखना है वो कमेंट्स बॉक्स में लिख देना है। सर एक क्वेश्चन सर। हाँ बोलो। सर अगर ये पेज घट जाता है सर तो फिर एक एक्स्ट्रा लेंगे सर? 3 नंबर पेज 4, 5, 6, 7, 8, 10 लगा सकते हो, 50 भी लगा सकते हो। ओके सर, ओके। कोई भी पेज, जैसे फ्लो चार्ट के भी पेज तुमको एक में नहीं हो रहा है, 2-3 लगा सकते हो। पेज नंबर 3 में किसी का कोई क्वेरीज है? नो सर। सर हमको अभी तक समझ में नहीं आया, तुम लोगों को आ गया। पेज नंबर 4, ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं हुआ जिसका हम इनपुट आउटपुट नहीं लिखाया।
ऐसा कोई प्रोग्राम है जिसके इनपुट आउटपुट मैंने नहीं लिखाया? जो इनपुट आउटपुट मैंने लिखा था वो उसको इधर लिखना है, बस हो गया। इनपुट की सर जगह में इनपुट, मेमोरी लोकेशन लिखना है मेमोरी लोकेशन आउटपुट में का। होगा, मेमोरी लोकेशन में रजिस्टर में होगा तो रजिस्टर दिखा के लिखना पड़ेगा। जो इनपुट आउटपुट है उसका इनपुट जो है उसको लिखना पड़ेगा, जो आउटपुट है उसको उधर लिखना पड़ेगा, बस हो गया। तो सर ये वाला पेज फर्स्ट में होना चाहिए ना, अभी लास्ट में क्यों है? सर प्रोग्राम ही नहीं हुआ, इनपुट आउटपुट आ गया। सर इनपुट सब पहले तो रहता है ना सर। इनपुट पहले रहेगा, वो समझ में नहीं आया। तुम जब लैब में प्रोग्राम करोगे ना तब तुमको पता चलेगा, पहले प्रोग्राम को टाइप करना है, उसके बाद तुमको इनपुट डालना है, उसके बाद प्रोग्राम को रन करा के फिर आउटपुट देखना है। यस यस, लेकिन हम लोग मतलब कॉपी के हिसाब से देख रहे थे। अभी लॉकडाउन है, नहीं तो हम बोलते थे हम एक बार कॉलेज जा रहे हैं, तुम लोग आ जाओ, तुमको लैब भी दिखा देंगे, मगर पॉसिबल नहीं होगा। अभी पुलिस हमको उठा के लेकर जाएगा, इसीलिए नहीं पॉसिबल हो रहा है। सर बोलो। सर ये जो मेमोरी लोकेशन है ये हम लोग इनपुट में लिखेंगे और आउटपुट में बस ये मेमोरी लोकेशन लिखना है, या सो मेमोरी लोकेशन के साथ डेटा भी लिखना है। घर की तरह तुम्हारा रामगढ़ में है क्या? मैंने तो इनपुट हेडिंग करके लिखाया था। नो सर ये दूसरा प्रोग्राम है, समझ गए। दूसरी प्रोग्राम, जो ही भी प्रोग्राम, इनपुट मतलब इनपुट मेमोरी लोकेशन के साथ क्या डेटा है, आउटपुट मतलब मेमोरी लोकेशन के साथ क्या डेटा है, बस हो गया। अब इसे लिखो नहीं तो मुश्किल हो जाएगा। क्लियर टू ऑल? सर कितना लिखना है सर? हैं? कितना क्वेश्चन का लिखना है? जितना क्वेश्चन कराया 4 को नहीं करा सर, मैंने 4 को दी। 4 छोड़ के उधर 4 नहीं है, कम से कम 20-25 तो प्रोग्राम करवाया। 20-25 प्लस है सभी सर। का लिखना है सर। सारा का सारा लिखना है। सर असाइनमेंट का बात करो, उसमें तो 4 को ही है ना सर। अरे भाई असाइनमेंट तो घर में करने के लिए दिया था, ये लैबोरेटरी का क्वेश्चन है, पूरा का पूरा लिखना है। कॉलेज तो खुलने घर के में बाद दिया था, जो सबमिट होगा इधर ये। कराया था सारा